Hello friends, in the previous lectures as we have discussed race condition, then critical section problem, and then solve it using multiple methods like Peterson's solution and using semaphores, and then we tried a number of problems on semaphores. Now in this lecture I'll discuss producer consumer problem, which is one of the very important classical problem of process synchronization, and here we'll solve it with the help of semaphores. Okay friends, now discussing the problem, there are two processes. One is called the producer and one is called the consumer, and as their name suggests, producer will produce something, you can assume an article or a data, or consumer will consume the data. And what is the issue? You can assume that there is a buffer with n slots from 1 2 3 up till what n, and हमको कोऑर्डिनेशन करना है बिटवीन द प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर, और हमको क्या प्रॉब्लम है, कैसे कोऑर्डिनेशन करना है। तो सी फॉर एग्जांपल हमारे पास एक प्रोड्यूसर है, नाउ दिस इज फॉर एग्जांपल प्रोड्यूसर, और हमारे पास एक दूसरा प्रोसेस है, नाउ दैट इज कंज्यूमर. For example, this is consumer. Now you understand this thing. ऐसा नहीं है कि they could be a software process, they could be hardware, because this problem can be simulated. For example, there's a now this is a robot. It produces some article, and that is some other robot which consumes that article. Or this same problem could be applied to softwares. You see, so there's a software which produces a logic, and that is another software or a process which consumes the logic. Okay. Now the problem is, when a producer produces, it must first check most important thing. You see what, क्या यहाँ पर कोई भी slot empty है कि नहीं है, like overflow condition. तो common sense बात है, आपको क्या चेक करना पड़ेगा, प्रोड्यूसर को प्रोड्यूस करने से पहले ये चेक करना है कि यहाँ पर कोई slot खाली है कि नहीं है. अगर slot खाली नहीं है तो लॉजिकली उसको यहाँ पे आर्टिकल या जो भी एलिमेंट प्लेस करना उसको अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए. सिमिलरली नाउ यू अज्यूम इफ यू आर अ कंज्यूमर एंड यू वांट टू कंज्यूम, इट्स लाइक डिलीट ऑपरेशन फ्रॉम अ डेटा स्ट्रक्चर, देन यू मस्ट फर्स्ट चेक व्हाट अंडरफ्लो. तो कंज्यूम करने से पहले आपको क्या देखना होगा कि एटलीस्ट एक सेल यहां पर ऐसा होना चाहिए जो कि क्या हो, एम्प्टी हो. ओके, थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट यू अंडरस्टैंड, प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करने से पहले देख रहा है कि एटलीस्ट एक सेल खाली है कि नहीं है. कंज्यूमर कंज्यूम करने से पहले देख रहा है कि एटलीस्ट एक सेल भरा है कि नहीं है. बट वी हैव टू आल्सो टेक केयर ऑफ वन इंपॉर्टेंट थिंग, व्हाट, एक ही टाइम पर प्रोड्यूसर कंज्यूमर साथ में ऑपरेशंस करने की कोशिश ना करें, अदरवाइज देयर विल बी इन क्लैश. तो यू सी, now this is an you can say a buffer or an array, and now I treat this entire array as critical section. Now that is important. So you see, it is a critical section, और array को या इस buffer को एक बार में कितने process access करेगा, एक, either the producer or the consumer. तो now you understand conclusion of the problem. Three major issues you have. When a producer produces something, it occupies a cell. So before you do that, you must know कि कम से कम एक सेल वहाँ पे खाली है कि नहीं है. Similarly, when a consumer consumes, it must first check whether वहाँ पर एटलीस्ट एक सेल भरा है कि नहीं है. एंड थर्ड केस, यू मस्ट अंडरस्टैंड व्हाट, एक ही टाइम पे दोनों काम करने की कोशिश नहीं करें, अदरवाइज देयर विल बी इन क्लैश. Now you see, to solve the problem, here I uses three semaphores, S, E and F. What is S? S is a semaphores which I use to solve, or which I use to take care of critical section. And as you know, if you want to solve critical section, then you initialize semaphore with 1. So now this S will take care क्या कि दोनों में से एक बार में एक ही प्रोसेस काम करेगा. If producer it produces something, then at that time consumer cannot consume, and if consumer is consuming, at that time the producer cannot produce. So this semaphore S will take care of that. Now as the name suggests, E stands for empty slots. So this will remember कि यहाँ पर कितने सेल्स फिलहाल खाली हैं. तो as you know, in the initial state पूरा का पूरा बफर हमारा खाली रहने वाला है. सो आई हैव इनिशियलाइज ई विद व्हाट, एन, एंड वन मोर सेमाफोर आई हैव यूज्ड व्हिच इज व्हाट, कैपिटल एफ. नाउ कैपिटल एफ विल टेक केयर कि हाउ मेनी स्लॉट्स आर फुल. तो स्टार्टिंग में, यू नो, सारे के सारे स्लॉट्स हमारे क्या हैं, खाली हैं. तो उसको मैंने इनिशियलाइज किया किससे, 0 से. नाउ यू रिमेंबर अगेन थ्री सेमाफोर्स आई हैव यूज्ड. First one is S, which will take care that only one process, either the producer or the consumer, performs operation at a time. Point number 1. Point number 2, the second semaphore, capital E, will take care how many slots are empty. In the starting, as सारे के सारे slot क्या है, empty. So I have initialized it with N, because I am assuming the size of the buffer is what, N. Very good. Now the third one is capital F. Capital F take care of what, how many slots are empty. So you see, in starting, sorry, how many slots are full. So in starting all the slots are empty, so I have initialized it what, 0.
Now before I tell you exactly each and every instruction how we write that code, पहले काम करते हैं, एक बार ड्राई रन करके देखेंगे. One time I'll run this producer and one time I'll run consumer, so you'll get to know automatically कि आइडिया क्या है. Now you see producer ने काम करना स्टार्ट किया while true, यानी कि जितनी बार आप चाहे प्रोड्यूस कर सकते हैं. Now you see एक और चीज आप समझना, बफर में एक से ज्यादा सेल हैं. अगर एक ही सेल होता there will be an automatic limitation, what strict alternation. जैसे प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करता उसका कंज्यूमर को कंज्यूम करना ही पड़ता. बट नाउ यू हैव मल्टीपल सेल्स. इसका मतलब ऐसा हो सकता है कि कुछ मल्टीपल इटरेशंस में लगातार कौन काम करे, प्रोड्यूसर. बट प्रोड्यूसर को कब रुकना होगा, जब सारे के सारे सेल्स फिल हो जाएंगे. सिमिलरली यू सी हो सकता है एक बार में ज्यादा कौन काम करे, कंज्यूमर. बट कंज्यूमर को कब रुकना होगा, जब सारे के सारे सेल्स आपके एम्प्टी हो जाएंगे. एंड अगेन एट वन गो यू कैन प्रोड्यूस वन एलिमेंट, एट वन गो you can consume one element. Now you see the code of the procedure. So it's just a theoretical statement. It produces something and what it do, weight of E. Now you know weight increase by 1 or reduce by 1, so it reduces by 1. Very good. Now you see weight E. जाहिर सी बात है कि जब आपने कोई एलिमेंट प्रोड्यूस किया है तो E stands for empty cells, और empty cells एक कम होने वाला है. तो for example suppose let me say suppose it is 5. So if E is initialized to 5, now weight E will do what, 4. तो E का वैल्यू हमने क्या किया, 4. एंड देन आई डू व्हाट, वेट ऑफ S. व्हाई, बिकॉज यू सी वेट ऑफ एस करना क्यों जरूरी है, हम चाहते हैं कि एक ही टाइम पे दूसरा यानी कि जो हमारा कंज्यूमर है ये ऑपरेशन परफॉर्म ना करे. तो जैसे ही हमने वेट ऑफ एस किया 1 का वैल्यू क्या हो गया, 0. एंड नाउ इट गो एंड अपेंड द एलिमेंट. फॉर एग्जांपल suppose let me write x here, then it do what, signal of s. तो जैसे ही आपने ऑपरेशन परफॉर्म किया, अब आप चाहो तो कंज्यूमर को रन करा सकते हो. तो मैं दोबारा बाहर आते हुए इसको क्या करता हूँ, सिग्नल करता हूँ. एंड वन मोर इंपॉर्टेंट, सिग्नल ऑफ f. नाउ बिकॉज एक सेल फिल किया तो दो काम हुए. पहला तो जो नंबर ऑफ स्लॉट्स एम्प्टी थे वो एक कम हो गया, बट नंबर ऑफ फुल स्लॉट्स भी एक बढ़ गया. तो मैंने सिग्नल किया किसको, f को. एंड नाउ f बिकम्स 1 बिकॉज पहले वैल्यू क्या थी, 0. सिग्नल करने का वैल्यू क्या हो गया, 1. यू अगेन यू सी जैसे ही प्रोड्यूसर एक बार रन करता है वो एक एलिमेंट प्रोड्यूस करता है. तो क्योंकि एक एलिमेंट प्रोड्यूस करता है तो जो एम्प्टी स्लॉट्स हैं वो एक कम हो जाते हैं और जो फुल स्लॉट्स है वो एक बढ़ जाता है. लेट मी रन इट वन मोर टाइम. सपोज इफ प्रोड्यूसर रन्स अगेन थियोरेटिकल स्टेटमेंट, इट प्रोड्यूसेस समथिंग, देन यू हैव व्हाट, वेट ऑफ ई. तो जैसे ही वेट करेगा ई को, द वैल्यू बिकम्स 3. अगेन वेट ऑफ एस, 1 से दोबारा क्या हो गया, 0. फिर उसने अपेंड किया, सपोज करो सेकंड एलिमेंट इज व्हाट, वाई. अगेन सिग्नल करेगा तो s को 0 को दोबारा क्या किया, 1. एंड अगेन सिग्नल f किया तो वैल्यू बिकम्स 2. नाउ यू सी क्योंकि दो एलिमेंट प्रोड्यूस मैं कर चुका हूं तो अभी एम्प्टी स्लॉट्स कितने बचे हैं, 3. और फुल स्लॉट्स कितने बचे हैं, 2. नाउ दैट इज हाउ द प्रोड्यूसर वर्क्स. ओके, नाउ लेट मी टेल यू अ सिंगल इटरेशन हाउ कंज्यूमर वर्क्स. तो आपने गेम खेलना स्टार्ट किया, सबसे पहले वेट f. नाउ यू सी जब कंज्यूमर कंज्यूम करेगा तो क्या होगा, एम्प्टी स्लॉट्स का नंबर एक बढ़ जाएगा और फुल स्लॉट का नंबर एक कम हो जाएगा. तो यू सी वेट f, जैसे ही वेट f किया, f स्टैंड्स फॉर फुल स्लॉट, तो वैल्यू एक कम हो गया. ओके, एंड अगेन देन व्हाट, वेट s, क्योंकि एक टाइम पे हम दोनों काम नहीं करना चाहते. तो जैसे ही आपने 1 को क्या किया, 0, देन यू कैन गो एंड टेक द एलिमेंट. सो सपोज करो लेट मी डिलीट दिस व्हाट, y. एंड अगेन सिग्नल 1. नाउ इसको ओपन किया, ये जो सिक्योरिटी हम लगा रहे हैं सीमाफोर की, इसको क्योंकि अज्यूम कर रहे हैं एज अ क्रिटिकल सेक्शन. एंड देन वी डू व्हाट, सिग्नल ऑफ ई. तो नाउ अगेन क्योंकि हमने एक स्लॉट खाली किया तो एम्प्टी स्लॉट की वैल्यू बढ़ के दोबारा क्या हो गई, 4. एंड अगेन यू कैन यूज अगेन अ थ्योरेटिकल स्टेटमेंट हमने लिखा है कि यू कैन यूज दैट वैल्यू फॉर सम पर्पस. तो इसी जैसे ही कंज्यूमर ने काम किया तो उसने एक एलिमेंट को कंज्यूम किया. जैसे ही कंज्यूम किया, एम्प्टी स्लॉट की वैल्यू 3 से बढ़ के दोबारा क्या हो गई, 4. और फुल स्लॉट की वैल्यू अगेन बढ़ के हमारी क्या हो गई, 1. तो नाउ यू सी दीज आर द बेसिक केसेस. ठीक, जस्ट एक सीक्वेंस में आपको जाना है. जैसे प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करेगा, एम्प्टी स्लॉट की वैल्यू को एक कम करेगा और फुल स्लॉट की वैल्यू को एक बढ़ा देगा. सिमिलरली यू सी हियर, जैसे ही कंज्यूमर कंज्यूम करेगा, फुल स्लॉट की वैल्यू को एक कम करेगा और एम्प्टी स्लॉट की वैल्यू को एक बढ़ा देगा. इस पूरे कोड में इतने पार्ट को हमने एक्स्ट्रा सिक्योरिटी में लिखा है. यू सी लाइक दिस पार्ट,
and this part, because we treat this array as the critical section. Now that is important. जब producer produce कर रहा है तो उस समय consumer को consume नहीं करना है. Problem is not defined with multiple you see producers, but even if multiple producers are there, only one producer can produce at a time, or multiple producer can produce at a time, but they can append one at a time. So इतना पार्ट करने से क्या होगा, देयर विल नेवर बी ए क्लैश. यहाँ पर कभी क्लैश नहीं होगा, एक बार में एक ही प्रोसेस काम कर रहा होगा. नाउ लेट मी टेल यू हाउ यू कैन गो एंड चेक ओवरफ्लो एंड अंडरफ्लो इन दीज केसेस. ओके, नाउ यू सी इफ यू वांट टू चेक ओवरफ्लो एंड अंडरफ्लो, नाउ लेट मी रब दीज वैल्यूज. So suppose करो first now this array is empty again. Suppose अगर we have considered 5 cells, तो empty slots are 5, S is again initialized to 1 and full slots currently are 0. तो फिलहाल क्योंकि ये पूरा का पूरा सिस्टम empty है, तो फिलहाल इससे क्या नहीं हो सकता, डिलीशन नहीं हो सकता. इसी अंडरफ्लो लेट मी चेक. नाउ यू सी वेरी इंपॉर्टेंटली, सबसे पहला इंस्ट्रक्शन ही क्या लिखा है, वेट ऑफ एफ. वेट ऑफ एफ मतलब फुल स्लॉट को आपको क्या करना है, कम करना है. बट यू सी अगर ये पहले से ही खाली है तो फुल स्लॉट को आप कभी कम नहीं कर सकते. नाउ यू अंडरस्टैंड, इफ द वैल्यू इज ऑलरेडी 0 यू कैन नॉट वेट इट. तो प्रोसेस यहाँ पे क्या चल जाएगा, यही रुका रहेगा और ये कंटिन्यू नहीं कर पाएगा. नाउ दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. एक बात आप समझना, जब मैं एक वैल्यू कंज्यूम करता हूँ ना, मेरे को दो काम करने हैं. फर्स्ट वन, मेरे को फुल स्लॉट की वैल्यू एक कम करनी है और एम्प्टी स्लॉट की वैल्यू एक बढ़ा देनी है. बट मैं जानबूझ के पहले क्या काम कर रहा हूँ, वेट ऑफ एफ. रीजन बीइंग, अगर एफ का वैल्यू ऑलरेडी क्या है, 0, यू कैन नॉट वेट इट. तो दैट इज हाउ आई एम चेकिंग व्हाट द अंडरफ्लो कंडीशन. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू अंडरस्टैंड. तो अगर मैं वेट करने की कोशिश करूंगा बट वैल्यू ऑलरेडी क्या है, 0, तो आप जानते हैं आई विल गो इनटू लूप और मैं कभी वेट नहीं कर पाऊंगा. तो that is how you check what, underflow. Again suppose let me put some value like A B C D. मान लेते हैं प्रोड्यूसर ने प्रोड्यूस करके सारा का सारा वैल्यू फिल कर दिया. तो अगर ऐसा हुआ तो अभी फुल स्लॉट की वैल्यू क्या हो चुकी होगी, एम्प्टी की वैल्यू क्या हो चुकी होगी, 0, एंड फॉर फुल द वैल्यू बिकम्स व्हाट, 5. नाउ यू नोट एट दिस पॉइंट when a producer produce something, now it first performs what, wait only. Now you see what the trick we have played. अभी भी दो काम हमको करने हैं. जैसे कोई एलिमेंट आप प्रोड्यूस करते हो, दो तीन चीज आपको करनी पड़ती है. पहला, फुल स्लॉट की वैल्यू आप एक बढ़ाते हो और एम्प्टी स्लॉट की वैल्यू एक कम करते हो. बट अगेन हमने जानबूझ के पहले हमेशा क्या परफॉर्म किया है, वेट ऑपरेशन. बिकॉज फ्रॉम द प्रीवियस लेक्चर आई थिंक यू मस्ट ऑलरेडी हैव अंडरस्टूड दैट आप किसी को रोक के रख सकते हो, वेट करा सकते हो सिर्फ यूजिंग व्हाट, वेट ऑपरेशन. सिग्नल में हम कभी कंडीशन चेक नहीं करते, तो हम जानबूझ के पहले क्या करा रहे हैं, एम्प्टी स्लॉट की वैल्यू कम करा रहे हैं. बट क्योंकि इस एरे या सिस्टम पहले से पूरा फुल हो चुका है हमारा बफर, तो वैल्यू ऑलरेडी क्या है, 0, और 0 अगर वैल्यू है तो मैं इस पे कभी भी वेट ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर पाऊंगा और सिस्टम यहीं पे लूप में चला जाएगा, यहीं पे वेट करता रहेगा. तो दैट इज हाउ यू कैन डू व्हाट, ओवरफ्लो चेक. अगेन रिमेंबर वन थिंग, conclusion of the story, two different processes you have, producer, consumer, both can work any number of times. I check underflow. How? When a consumer tries to consume, I perform first what, wait of f. But अगर empty slot already 0 है तो आप कभी wait नहीं कर पाओगे, आप वहीं पे wait करोगे. Similarly, when a producer tries to produce, I perform first wait of e. Why wait of e? You see, जैसे ही empty slot की वैल्यू अगर already 0 है, यहाँ पे कोई slot नहीं है, तो आप कभी भी wait operation perform नहीं कर पाओगे. So that was producer consumer problem. You understand? 3 semaphores we have used, and using 3 semaphores we can solve producer consumer problem quite comfortably. Now that is a very important standard, you say, classical problem on synchronizations, and it is being referenced in number of times in different examinations. So in the next lecture I'll discuss 1 or 2 problems, questions, previous year questions that were based on a producer consumer problem. I hope you understand the logic. Thank you.